Bismillahirrahmanirrahim. So beta, next we have Cannizaro's reaction. Um, but it's also a part of that series that we are already discussing, that is acid base catalyzed reaction. And here we have Cannizaro's reaction we are going to discuss. So बेटा, what are Cannizaro's reaction? बेटा आपको जो है वो ये डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि what write down the difference between Cannizaro's reaction and aldol condensation. Actually Cannizaro's reaction is the opposite to aldol condensation, we can also say that. और क्या होता है जी कैनिज़ेरोस रिएक्शन? हमने जब एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन देखा, उसमें हमने देखा कि उसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन, सारा जो काम हो रहा था वो सारा कुछ जो है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन की वजह से हो रहा था. बट ये जो कैनिज़ेरोस रिएक्शन होते हैं, इसमें जो है वो ऐसे ये रिएक्शंस होते हैं जिसमें अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम ना हो. वो कंपाउंड जिनमें अल्फ़ा हाइड्रोजन ना हो, वो कंपाउंड जो है वो कैनिज़ेरोस रिएक्शन जो है वो देते हैं. ठीक है, अल्फ़ा कार्बन तो हो सकती है, बट जो है वो अल्फ़ा हाइड्रोजन जो है वो उसका होना जो है वो ज़रूरी नहीं है. ठीक है, सो एल्डिहाइड्स दैट हैव नो अल्फ़ा हाइड्रोजन एटम्स अंडरगो कैनिज़ेरोस रिएक्शन, वो कैनिज़ेरोस रिएक्शन जो है वो शो करते हैं. But it's also known as disproportionation reaction. Why? Because they are self redox reaction. ये self redox reaction है कि एक ही कंपाउंड है उसकी ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है और एक ही कंपाउंड है उसकी रिडक्शन भी हो रही होती है. So that's why they are self redox reaction. They are known as self redox reactions. So two molecules of the aldehyde are involved, one molecule being converted into the corresponding alcohol and the other one is converted into the salt form. एक बेटा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाती है और एक उसी कंपाउंड, जो भी हमारे पास कंपाउंड होता है उसका साल्ट बन जाता है. तो जो अल्कोहलिक होती है वो हमारे पास वहाँ पे रिडक्शन हो रही होती है और जो हमारे पास जो है वो साल्ट फॉर्मेशन वाला है वहाँ पे ऑक्सीडेशन होती है. उससे पहले बेटा आपको जो है, उससे पहले ऑक्सीडेशन क्या है, रिडक्शन क्या है, इस चीज़ को ज़रा आप रिकॉल योर कॉन्सेप्ट, प्रीवियस कॉन्सेप्ट. बेटा अपना ज़रा प्रीवियस कॉन्सेप्ट माइंड में लाएं कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है. मैं आपको अगेन बता देती हूँ कि व्हाट इज़ ऑक्सीडेशन एंड व्हाट इज़ रिडक्शन. सो बेटा ऑक्सीडेशन अगर हम कहते हैं जी रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन एंड एडिशन ऑफ ऑक्सीजन. प्रोटॉन हमारे पास बेटा हाइड्रोजन होता है तो हम रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन या रिमूवल ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं. अगेन आई एम रिपीटिंग द डेफिनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन. व्हाट इज ऑक्सीडेशन? वी हैव थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेफिनेशंस ऑफ ऑक्सीडेशन. फर्स्ट वन इज रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, second one is removal of proton or hydrogen, and the third one is addition of oxygen, that is oxidation. And what is reduction? Here we also have three definition of reduction. You have already discussed in your previous classes, like you have discussed in 9th class chapter number 7 electrochemistry, where we have discussed in very detail what is reduction and what is oxidation. So what is reduction? We can say that addition of hydrogen, addition of removal, and removal of addition of electron, addition of hydrogen and removal of oxygen. What is reduction beta? Removal of oxidation oxygen, addition of hydrogen and addition of electron is known as reduction. So beta, when reduction will happen, alcoholic compound will form, and when oxidation will happen, salt formation, salt will form of that compound. So come towards the next beta. The reaction is carried out beta, these Cannizaro's reaction are carried out by in the presence of sodium hydroxide, that should be of 50%. So we have 50% aqueous solution of sodium hydroxide at room temperature. Then it will, when it will react with the compound with aldehyde like, so what will happen, we will check in the reaction. So first of all we have formaldehyde. ठीक है, HCOOH, that is formaldehyde. It will react with sodium hydroxide. Then what will happen बेटा, यहाँ पे रिडक्शन हो जाएगी और ये अल्कोहल बन जाएगा और ये सॉल्ट बनेगा और यहाँ पे क्या होगी जी, ऑक्सीडेशन होगी. ठीक है, हम देखते हैं हुआ क्या बेटा. अब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कैसे होगी, हमने देखा जो रिडक्शन है दैट इज़ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन.
सो ये अगर हम इसको 2 को इग्नोर कर दें, फिलहाल ये जो 2 लिखा हुआ है इस चीज़ को इग्नोर कर दें, HCOOH है, यानी हमारे पास ये 2 मॉलिक्यूल है ना, हम इसको यूँ लिख सकते हैं COOH, ठीक है। और यहाँ पर भी COOH और H, इसी में एक की जो है वो ऑक्सीडेशन होनी है और एक की जो है वो रिडक्शन होनी है। तो हम देखते हैं रिडक्शन कैसे होती है। आफ्टर रिडक्शन बेटा आपके पास अगर देखो तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास ये बना है CH3OH मिथाइल अल्कोहल बना है। बेटा अगर हम यहाँ पे देखें, ये एक हाइड्रोजन है, ये एक हाइड्रोजन, यानी इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन अटैच हैं और एक ऑक्सीजन अटैच है। बट यहाँ पे CH3OH दैट इज़ मिथाइल अल्कोहल जो हमारे पास प्रोडक्ट बनी है, अगर हम इसमें देखें तो 3 और एक 4 हाइड्रोजन है कार्बन के साथ। हाइड्रोजन क्या हो गई है, ऐड हो गई है। सो क्या हो गया, इसके ऊपर रिडक्शन हो गई है, ठीक है। इसके ऊपर क्या होगी, इस वाले कंपाउंड के ऊपर, फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर रिडक्शन हो गई है। इसी तरह से अगर हम ये नीचे वाला देखें, ये है जी HCOOH। अगर हम यहाँ पर देखें ज़रा, अगेन आई एम राइटिंग COOH। अब यहाँ पे बेटा हमारे पास 2 हाइड्रोजन हैं, एक ये, बट यहाँ पे हमारे पास एक ही हाइड्रोजन है। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन होती है, तो यहाँ पर इस वाले कंपाउंड के ऊपर बेटा क्या हो गई है जी, ऑक्सीडेशन हो गई है। और ऑक्सीडेशन जब होगी तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा, ठीक है। सेम केसेस इन बेंजल्डिहाइड। और हमने पहले देखा है बेटा कि जब हमने कैनिज़ारोस रिएक्शन करवाने हैं तो उसके लिए जो हमने कंपाउंड लेना है उसमें अल्फ़ा कार्बन तो हो सकती है बट अल्फ़ा हाइड्रोजन नहीं होती है। तो अगर हम इसमें देखें तो ये कार्बन है, तो ये कार्बन, ये भी कौन कार्बन ही है जिसके साथ ये वाला जो है वो ग्रुप अटैच है, ठीक है। एल्डिहाइड ग्रुप जो है अटैच है, ठीक है। सो ये बेंजल्डिहाइड है, बेंजीन के साथ एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है, सो दैट्स व्हाई इट्स बेंजल्डिहाइड। बट हियर इट इज़ नॉट हैव अ it's not have a alpha hydrogen, so that's why it will give Cannizaro's reaction. अगर हम देखें तो here we have 50% sodium hydroxide, here reduction and here oxidation, ठीक है। अब क्या होगा जी कि ये जो है वो देखो हमारे पास ये एक H था बट यहाँ पे 2H और आ गए हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पे रिडक्शन हो गई है। और यहाँ पे जो एक हाइड्रोजन था वो भी रिमूव हो गया और क्या हो गया, हमारे पास जो है वो ऑक्सीडेशन हो गई है। तो हमने देखा यहाँ पे इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बन जाती हैं। बेटा नेक्स्ट हम देखते हैं जी मैकेनिज्म। व्हाट्स द मैकेनिज्म? बेटा स्टेप 1 इज़ द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स आयन, यू विल इनाइन। यहाँ पे आप हेडिंग दे सकते हैं कि द फॉर्मेशन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इनाइन। सो बेटा स्टेप 1 में क्या होगा जी, जो हाइड्रोक्साइड आयन है ये हमारे पास एज अ न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगा, ये अटैक करेगा फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर। और जब ये फॉर्मेल्डिहाइड के ऊपर अटैक करेगा तो आफ्टर अटैकिंग ये क्या बना देगा जी, हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स एनाइन बना देगा, जिसको आप यहाँ पे देख भी सकते हैं कि ये हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स एनाइन बन गया है। क्या हुआ जी, इस हाइड्रोक्सिल आयन ने इस कार्बन के ऊपर आके अटैच किया और ये जो कार्बन और ऑक्सीजन के साथ दरमियान डबल बॉन्ड था ये टूट गया। जब डबल बॉन्ड टूट गया तो ऑक्सीजन के पास एक बॉन्ड की डेफिशिएंसी हो गया, बिकॉज बेटा ऑक्सीजन जो है वो हमारे पास कितने बॉन्ड बनाता है जी, 2 बनाता है। सो दैट्स वाई यहाँ पे इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ गया और हमारे पास ये कॉम्प्लेक्स एनाइन बन गया। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है बेटा द एनाइन ट्रांसफ़र अ हाइड्राइड इनटू सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। व्हाट विल हैपन, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन है ये जो है इस कार्बन की तरफ अपना शिफ्ट करेगा एनाइन, ठीक है। और ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये जो बॉन्ड है ये टूट जाएगा। हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्राइड आयन के तौर पे यहाँ से रिमूव हो जाएगी और ये हमारे पास जो है वो फॉर्मिक एसिड बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, हमारे पास फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। समझ आई क्या बता रही हूँ मैं, कि ये जो है वो अपने आयन जिसको शिफ्ट करेगा तो ये कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये बॉन्ड बना लेगा, डबल बॉन्ड फिर से बन जाएगा, ठीक है। और ये जो हाइड्रोजन और कार्बन के दरमियान बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाएगा, हाइड्राइड आयन यहाँ से निकल जाएगा एज आ हमारे पास जो है ये एज आ हमारे पास क्या निकलेगा जी, न्यूक्लियोफाइल। ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यहाँ से रिमूव हो जाएगा। So the presence of the negative charge on the oxygen of the anion helps in the form of the loss of hydride ion, और ये hydride ion यहाँ से remove हो जाएगा। स्टेप 3 देखें, that is the attack of hydride ion। अब वो जो hydride ion बना है वो अटैक करेगा, ठीक है, इस कार्बन के ऊपर और यहाँ पे जो ऑक्सीजन और इसके दरमियान बॉन्ड है ये टूट जाएगा और हमारे पास मेथोक्साइड आयन बनेगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो मेथोक्साइड आयन है इट विल एक्ट एज अ बेस एंड एज एब्स्ट्रैक्ट्स अ प्रोटॉन फ्रॉम फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड से एक प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा, वहाँ से निकाल लेगा, ये वाला प्रोटॉन यहाँ से निकाल लेगा, ठीक है।
और फिर क्या होगा हमारे पास बेटे, ये मेथनॉल बन जाएगा। और साथ में एक जो है वो ये हमारे पास क्या बन गया, ये एक जो है वो हमारे पास एक फॉर्मेट आयन बन गया। ये जो फॉर्मेट आयन बना है ये क्या करेगा, इस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ अगेन रिएक्ट करेगा, सोडियम के साथ ये मिलकर जो है वो हमारे पास सॉल्ट बना देगा, ठीक है। और हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन जो है वो वापस मिल गया। बेटा हमें पता है हाइड्रोक्सिल आयन एज अ कैटलिस्ट यूज़ हुआ था, और आपको पता है जो कैटलिस्ट होते हैं वो एंड पे हमारे पास एज इट हमें वापस मिल जाते हैं। सो ये हमें जो है वो एज इट वापस मिल गया। तो ये हमारे पास बेटा था कैनिज़ारोस रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल।